Good afternoon, students. Once again, I, Priyanka Rani, PGT Commerce, Kendriya Vidyalaya Bad Mathura, am with you to discuss on the topic Levels of Management from the chapter Nature and Significance of Management, Chapter 1 of Business Studies. In this video, we will study about levels of management. पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स में हम मैनेजमेंट को डिवाइड करेंगे, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो. सो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इन 3 categories, 3 levels. From top to bottom we are taking. सबसे ऊपर top level management. After that there is middle level management. Then after middle level management there is supervisory level or operational level management. If we are taking from top to bottom, first top level management, then middle level management, then supervisory level management. All the top authorities of the company or the business organization come under top level management. For example, board of directors, chairman, general managers, president, vice presidents, chief executive officers, chief financial officers and chief operating officer. These are the top level authorities of business organization. Then after top level management, their subordinates are middle level managers. Middle level consists of all the departments of that business organization, and that department consists of purchase department, sales department, marketing department, accounts department, or the divisions of that business organization. For example, a business organization is having 2 divisions for 2 different products. One may be in Delhi and one may be in Mumbai. Then divisional heads also come under the middle level management. Delhi branch का जो head होगा, that is the part of middle level management. ऐसे ही मुंबई branch का जो head होगा, मुंबई division का, that is also the part of middle level management. So middle level management includes purchase manager, sales manager, marketing manager, executive officers, plant superintendent, divisional heads and departmental heads. After middle level management, their subordinates are operational level managers who work at supervisory level of management, which is also known as operational level management. It includes these officers, supervisors, superintendent, foreman, section officer, clerk, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स एक्सेट्रा. और इनके सबॉर्डिनेट होंगे वर्कर्स. वर्कर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन these levels of management. These are outside of this flow chart because workers are not having subordinates. Workers are the least subordinate of the higher authorities. Further, workers के कोई subordinate नहीं होते हैं, इसलिए वर्कर्स को हमने या एम्प्लॉयज़ को हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के में इंक्लूड नहीं किया है. सो वर्कर्स के ऊपर जितने भी लेवल्स हैं, वी आर डिस्कसिंग देम टॉप, मिडिल एंड सुपरवाइजरी लेवल. टॉप लेवल मैनेजर्स के सबॉर्डिनेट हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स, एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स के सबॉर्डिनेट हैं सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स, और उनके सबॉर्डिनेट हैं वर्कर्स. वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उनके फर्दर कोई सबॉर्डिनेट्स नहीं होते हैं. जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो पियून है उसका कोई फर्दर सबॉर्डिनेट नहीं है, तो पियून किस में आएगा? वर्कर कैटेगरी में आएगा. दैट पर्सन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. सो देयर आर 3 लेवल्स, टॉप, मिडिल एंड सुपरवाइजरी लेवल. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप लेवल्स में डिवाइड करेंगे तो ये 3 लेवल्स ऑफ
मैनेजमेंट ही वहाँ पर होंगे. नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये डिफरेंट लेवल पर ये मैनेजर्स कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इनके काम क्या हैं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट in the next slide. The functions of these management levels or the managers who are working on these levels. Top level management function is they formulate overall goals and strategies of the ऑर्गेनाइजेशन. टॉप लेवल मैनेजर्स का काम है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और स्ट्रैटेजीज, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल प्लान फ्रेम अप करना, उसके उस ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव सेट करना. दैट इज़ द वर्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. These persons are fully responsible for success and failure of the organization, as well as they are responsible फॉर द बिजनेस एक्टिविटीज़. जो भी वो बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा, जो भी वो काम कर रहे हैं, फॉर दीज एक्टिविटीज़ दे आर टोटली रिस्पॉन्सिबल. एंड इफ़ दैट एक्टिविटी इज़ इफेक्टिंग द सोसाइटी, उसका सोसाइटी पर भी अगर कोई इम्पैक्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उस इम्पैक्ट के लिए भी ये टॉप लेवल अथॉरिटीज़ ही आंसरेबल होंगी. देन दे मेंटेन कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड. ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी आउटसाइड फैक्टर्स हैं जो उसकी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन सारे फैक्टर्स के साथ कॉन्टैक्ट रखना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. एंड दे कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, टॉप लेवल मैनेजर्स के सबऑर्डिनेट हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स, दोज हु आर द हेड्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो उन डिपार्टमेंट्स हेड को ऑर्डर करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना और उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, दैट इज़ ऑल्सो द वर्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. नाउ मिडिल लेवल मैनेजमेंट. मिडिल लेवल मैनेजमेंट गेट ओवरऑल प्लान्स फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट, और उन प्लान्स के बेस पर मिडिल लेवल मैनेजमेंट विल मेक देयर ओन डिपार्टमेंटल प्लान्स. अपने डिपार्टमेंटल प्लान्स फ्रेम करेंगे और उनका काम होगा लोअर लेवल मैनेजमेंट और टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में लिंक का काम करना. दे वर्क एज लिंक बिटवीन टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट. दे इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ नेसेसरी स्टाफ. मिडिल लेवल मैनेजमेंट मेक रिक्रूटमेंट फॉर देयर डिपार्टमेंट्स, और वो इंश्योर करते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में जितना भी स्टाफ रिक्वायर्ड है वो एवरी टाइम होना चाहिए. सो टाइम टू टाइम दे रिक्रूट द स्टाफ इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड. एंड अपने एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करना, दिस इज़ ऑल्सो द वर्क ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट. और एम्प्लॉयज़ के लिए इंसेंटिव प्लान्स रन करना. दे मोटिवेट द पीपल इन देयर डिपार्टमेंट टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स. उनको मोटिवेट करते हैं, दे प्रोवाइड देम इंसेंटिव्स, दे प्रोवाइड देम डिफरेंट टाइप्स ऑफ benefits so that they feel motivated to achieve their desired objectives. And they cooperate with other departments. One departmental head will cooperate with other department head. Purchase department and sales department दोनों को एक दूसरे के साथ cooperate करना पड़ेगा, then organizational objectives can be achieved. फाइनेंस एंड परचेज डिपार्टमेंट को भी एक साथ कोऑर्डिनेट करना होगा और कोऑपरेट भी करना होगा, देन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जितना सेल्स डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करे. ऐसे ही जितना प्रोडक्शन हो गया है, सेल्स डिपार्टमेंट उसको सेल करने के लिए एफर्ट्स करे. दिस इज द कोऑपरेशन ऑफ परचेज एंड सेल्स डिपार्टमेंट. तो दोनों को एक दूसरे से कोऑपरेट करना होगा, then organizational objectives can be achieved. So this establishment of this cooperation and coordination among the departments is the responsibility of departmental heads who are working on middle level management. और इसके अलावा मिडिल लेवल मैनेजमेंट फर्दर इंस्ट्रक्शंस किसको इशू करेंगे? हु आर द सबऑर्डिनेट्स? देयर सबऑर्डिनेट्स आर लोअर लेवल मैनेजर्स, ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स, या फिर जिनको हम कह सकते हैं सुपरवाइजरी लेवल managers. So middle level managers will give instructions to lower level managers. So इनका काम क्या है? Because जैसा हमने इनका नाम ही पढ़ा, supervisory level managers, जो कि सबसे lowest level of management है. Supervisory means they supervise the activity of the workers.
वो वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनके काम को देखते हैं एंड देन ऑब्जर्व कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं. सो लोअर लेवल मैनेजमेंट दे डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स के एफर्ट्स को ओवरसी करते हैं, वॉच करते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं दैट इज़ डन प्रॉपरली और नॉट. दिस सर्व एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स. लोअर लेवल मैनेजर्स वर्कर्स और मिडिल लेवल मैनेजर्स के बीच में लिंक का काम करते हैं. वर्कर्स को अगर कोई प्रॉब्लम है, वर्कर्स के रिपोर्ट को मैनेजर्स तक पहुंचाते हैं और मिडिल लेवल मैनेजर्स के इंस्ट्रक्शंस को वर्कर्स को कन्वे करते हैं. वर्कर्स की कोई ग्रीवेंसेस हैं, देन वर्कर्स विल इंटीमेट अबाउट देयर ग्रीवेंसेस, देयर प्रॉब्लम्स टू द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स. अपने सुपरवाइज़र को बताएंगे, देन सुपरवाइज़र विल कम्युनिकेट इट टू द डिपार्टमेंटल हेड. तो दोनों के बीच में, मिडिल लेवल मैनेजर्स और वर्कर के बीच में लिंक का काम करते हैं. दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू द वर्कर्स. वर्कर्स को गाइडेंस देते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं. इफ़ इट इज़ नीडेड, टाइम टू टाइम उनको ट्रेन करना, उनके स्किल एनहांस करना, उनको नई चीज़ें सिखाना, न्यू मेथड्स उनको लर्न कराना. दैट इज़ द वर्क ऑफ सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स एंड दे इंश्योर गुड वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्री और वर्किंग एरिया. और वो उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन वर्कर्स को प्रोवाइड भी कराते हैं. सो मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्री, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज, सैनिटेशन हो, वाटर फैसिलिटी हो, लाइटिंग प्रॉपर हो, सीटिंग अरेंजमेंट एंड रेस्ट इंटरवल्स, these create a good working condition for the workers. So ensuring these kind of good working conditions for the worker is the responsibility of supervisory level managers. So with this you can understand, अगर कोई भी person, अगर हम आपसे पूछें if the person is working as production manager of the company, तो वो कौन से लेवल पे काम कर रहा है, then we can answer production manager is the middle level manager. तो उस पोस्ट पे उसको कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने होंगे, तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं. मिडिल लेवल मैनेजर्स will work as a link between top and supervisory level managers. They implement the plans and policies framed up by the top level management. They prepare their own departmental plans. They issue instructions to the lower level managers, etc. These are the functions of middle level manager. I hope you understood, students. Thank you. That's all for today. Have a nice day.